Hello everyone, I'm Rashid Khan from Lakshmi Prasad Memorial Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Class, today we will have to explain the chapter number 3, that is metal and non-metals, on which there is just some portion, the important portion on which we have to discuss. There is a chemical reaction that can be happen due to the presence of metals. That means when the metal get reacted with the acid base, water or oxygen, what happened then? So I think there is some portion as I have already completed. On that regard, we have to proceed to the next, that is a reaction of metals with reaction of metals with reaction of metal acids. What happens when there is a reaction takes place in between the metals and acids? So here some of the metals like sodium, potassium, magnesium, calcium, aluminum, iron, copper, zinc, whatever, etc. So in which there is some of the acids like hydrochloric acid, nitric acid, sulfuric acid, carbonic acid, like phosphoric acid, HCOH, formic acid, CH3, COOH, acetic acid, plus sulfuric acid. So we have to move on to the resulting. What will be the resultant takes place? The resultant here, there is sodium chloride, potassium nitrate, magnesium sulfate, calcium carbonate, ammonium phosphate, ferrous cobalt, copper acetate, zinc sulfate. In this regard, we can write the equations like sodium chloride plus hydrogen gas. So here is the one hydrogen, so we have to multiply by 2, so it will also be 2, and there must be 2. Into the next one, potassium nitrate, on which we have to write potassium nitrate, KNO3, potassium nitrate plus H2 gas. So what happened when the metal get reacted with acid? So they will form always a metallic salt as well as the hydrogen gas. So you can see the potassium, nitrate, sodium chloride, these are what? The metallic salt, and here is hydrogen gas evolved. In this case, magnesium sulfate will form MgSO4 plus H2. Hydrogen gas is released, but here is one hydrogen, so it will be write this 2HNO3, and this will 2 potassium nitrate, and here the calcium carbonate,
CO3 plus H2 hydrogen gas. Next is ammonium phosphate AlO4 plus H2 plus there is a 3 molecule, so it will be 2 and there will be 2. So 2 and 3, 6 molecule, 3H2. That is ammonium phosphate plus 3 hydrogen. Ferrous formate Fe CHCO plus H2. So this will be 3 and 2. So just 6, so 2 Fe. And now into the next one, that is in case of copper CuCH3COO copper acetate. Next zinc sulfate ZnSO4 plus H2. तो हम इस केस में कह सकते हैं कि सोडियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा सोडियम क्लोराइड अ मेटालिक सॉल्ट, और मेटालिक सॉल्ट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस बाहर होगी। दूसरा केस है पोटेशियम जब रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड से तो नाइट्रिक एसिड के साथ पोटेशियम नाइट्रेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। मैग्नीशियम प्लस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर होगी। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, एक सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। तो देखिए सारे के सारे एग्जाम्पल उसी तरीके से हैं। अब हम दूसरी बात करेंगे reaction of metals with water. What happens if there is a water get reacted with a metal? तो होगा क्या, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे सबसे पहले पोटेशियम है, हाइड्रोजन है, तो बनेगा क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। KOH when forms, so that means 2 hydrogen, so we have to write 2 hydrogen, and here is a 2 potassium 2, and this will 2 hydrogen. Why? Because 2 oxygen is there, 2 oxygen is there, so there will be the 2 hydrogen, and hydrogen gas is evolved. So हम कह सकते हैं कि जब भी वाटर मेटल के साथ, किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, उसके हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे इस केस में क्या बन रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर होगा। ये भी 2 मॉलिक्यूल है, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। कंफर्म। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH twice, so that will be the 2 oxygen 2 hydrogen plus 2 hydrogen is getting evolved. And दूसरे वाले में देखेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इन दिस केस सेम हियर MgOH twice plus H2, and this will form
2H2O, OH12 plus 2H. Aluminium hydroxide AlOH thrice plus H2. So if it is the OH thrice, so what does it mean? 3 hydrogen, 3 oxygen. So 6, 2, 3 is 6, and here is 2, 3 is 6, this one is 3 hydrogen. तो 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। सेम केस में ये भी 6 होगा और बनेगा 2Fe-OH प्लस 3H2। ओके, और दूसरा देखेंगे Cu प्लस H2O, CuOH प्लस H2, 2 molecule of Cu, so 2H2, 2Cu2H and 2 hydrogen gas is released. Now the next one, zinc hydroxide is ZnOH twice plus H2, and this will form 2OH plus 2O plus 4H, that is hydrogen gas evolved. So in this case, wherever the potassium, magnesium, sodium, anything else, that is any metal get reacted with the water, there will be the formation of hydroxide as well as the hydrogen gas evolved. Now the next one is नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट है आपका reaction with acid, reaction with now aqua regia. एक्वारिजिया, तो एक्वारिजिया होता क्या है, किसको हम एक्वारिजिया कहते हैं? इसको हम कहेंगे फ्रेशली प्रिपेयर्ड concentrated nitric acid and hydrochloric acid, concentrated nitric acid and hydrochloric acid in the ratio of 1:3, that can melt any metal like iron and copper. They have their melting point 1538 and 1083 degrees centigrade रेस्पेक्टिवली। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब भी हम देखेंगे कोई मेटल, जब कोई भी एसिड दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों फ्रेशली प्रिपेयर्ड किए जाएं, जिनमें रेशियो क्या 1:3, यानी 1 रेशियो हो HNO3 नाइट्रिक एसिड का, HNO3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इनका रेशियो क्या होना चाहिए 1:3, इनका जो रेशियो होगा 1:3 होगा।
अगर 1:3 के रेशियो में कोई नाइट्रिक एसिड 1 हो और 3 अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हो, और इन दोनों को रिएक्ट कराया जाए तो क्या बनता है, ये बनेगा एक्वा रीजिया। और ये एक्वा रीजिया ऐसा होता है जो हैवी से हैवी या किसी भी मेटल को क्या कर सकता है, मेल्ट करता है, चाहे वो उनका मेल्टिंग पॉइंट कितना भी हो। जैसे देखिए ये मेल्टिंग पॉइंट है 1538 आयरन का, और कॉपर का होता है 1083 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों केसेस में क्या होगा कि आपका जो भी मेल्टिंग पॉइंट होगा उस सारे मेल्टिंग पॉइंट को ये अचीव कर सकता है बाय मेकिंग दिस सच टाइप ऑफ एसिड इन दैट पर्टिकुलर रेशियो, दैट इज कॉल्ड एज एक्वा रीजिया। इसको हम लोग कहते हैं एक्वा रीजिया। क्लियर? नाउ रिएक्शंस ऑफ मेटल विथ reactions of metals with reactions of metals with reaction of metals with solution of other than solution of other than metal salt, solution of other metal salts, solution of other metal salts। जब हम लोग मेटल सॉल्ट का रिएक्शन कराते हैं किसी मेटल से तो क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। तो सपोज करिए कि हमारे पास सोडियम सल्फेट हो, पोटेशियम सल्फेट हो, कैल्शियम कार्बोनेट हो, उसके साथ किसी अदर मेटल का रिएक्ट कराते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपका यहाँ पे है कि कॉपर सल्फेट दिया गया है, कॉपर सल्फेट को हम लोग आयरन से रिएक्ट कराएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसकी कंडीशंस, ये एक्वस फॉर्म में है, ये सॉल्यूशन है, और आयरन कैसा होगा, सॉलिड होगा। तो जो ये रिएक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ये बनाएगा फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये बनेगा फेरस सल्फेट, यानी कि ये इसको क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा। क्यों रिप्लेस करेगा, क्योंकि फेरस जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो लीस्ट रिएक्टिव वाले को मोस्ट रिएक्टिव मेटल क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। मोस्ट रिएक्टिव मेटल लीस्ट रिएक्टिव मेटल को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। इसी वजह से क्या बनेगा, फेरस सल्फेट बनेगा। अब दूसरा एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, आयरन सल्फेट ले लें और आयरन सल्फेट, या हम K2SO4 लेंगे और इसके साथ आयरन लेंगे। तो इसमें पोटेशियम जो होगा वो मोस्ट रिएक्टिव होता है, वो आयरन इसको क्या करेगा, रिप्लेस कभी भी नहीं कर पाएगा। जब रिप्लेस नहीं करेगा तो क्या होगा, नो रिएक्शंस विल टेक प्लेस, कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर है? तो हम देखेंगे इसमें कि ये आपका रिएक्शन है जब भी कोई मेटल सॉल्ट किसी अदर मेटल सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा। अब एक हम लोग देख रहे हैं Mg, मैग्नीशियम को सॉल्ट फॉर्म में है, इसको रिएक्ट करा दें कॉपर सल्फेट से, तो क्या होगा, कॉपर सल्फेट की जगह पे ये कॉपर क्या करेगा, रिप्लेस हो जाएगा मैग्नीशियम से और बनाएगा मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर। दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक टुडे। विल डिस्कस